Assalamu alaikum students. I hope you all are well and doing good. Students, in the previous class, we have done till page number 29 as we have chapter number 2 which we have started in the previous classes. But in today's class, we are going to start from page number 30. So I want each and everyone to open book page number 30. Let's start 2.3 measuring length. Figure 2.6 is showing beta. You can see that the three person are walking. Who is the tallest? Obviously beta, when we can see, we can find out like through our observation when we haven't measured their length, but we can say that the number C person is the tallest, right? Because we can just observe and we can say that yes, number C person is the tallest. Now they are saying which line PQ or RS is longer. Okay, longer. When we can see the line PQ, okay, and RS. So what we can say, which line is bigger? Obviously, we can say that PQ is longer than RS, right? Now, in figure 2.8, which circle in the center, X or Y, has a longer diameter? Now, when we are talking about X or Y, you can see this, X or Y. So, how can you define that X or Y has a longer diameter? उसका जो बेटा diameter होगा, मतलब एक सर्कल की किसी भी एक साइड से उसकी ऑपोजिट की सेकंड साइड से हम उसको मेजर करेंगे, तो उसका डायमीटर जो है वो किसका बड़ा होगा, एक्स का या वाई का? ऑब्वियसली बेटा एक्स का डायमीटर बड़ा होगा. अब इसके बेटा ये इसके आगे जो हैं, इसके आगे छोटे छोटे सर्कल्स हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या बेटा उसके डायमीटर किसका बड़ा है, एक्स का या वाई का? तो बेटा एक्स का बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप सर्कल देखते हैं एक्स का, वो क्या है, बड़ा है थोड़ा उससे, वाई से बड़ा है उसका सर्कल थोड़ा सा, ठीक है. Now let's start. Check your answers with a ruler. It has been shown that human senses are limited and not always reliable. This is why we need instruments for making accurate scientific measurements. When you measure the height, diameter, or how long the lines are in the diagrams above, you actually you're actually measuring length, which is the distance between 2 points. The SI unit of length is a meter. Now beta, when we are talking about these all the figures that right now I just asked you that beta you have to tell me that in figure 2.6 who was the longest, in figure 2.7 which line is longer, or in figure 2.8 which circle has a larger diameter. But when we are measuring them, so it means that we haven't measured. हमने इसकी height measure नहीं की, हमने इनका diameter measure नहीं किया, या हमने इनका जो है ये कितनी long है उनको measure नहीं किया, ठीक है. But अगर हम बात कर रहे हैं बेटा इन तीनों की, तो बेटा इसका ये मतलब है कि हमने अभी जो ह्यूमन ने ऑब्जर्व किया है, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स ऑब्वियसली, तो हमने किससे ऑब्जर्व किया है बेटा, हमने सिर्फ अपनी सेंसेस से ये ऑब्जर्व किया है कि कौन टॉल है, कौन स्मॉल है, कौन सी लाइन जो है वो लॉन्गर है और कौन सी लाइन जो है वो स्मॉलर है, और किसका डायमीटर लार्जर और किसका डायमीटर लॉन्गर है, ठीक है. तो हम सिर्फ और सिर्फ ये सेंसेस में से अपने सेंसेस को यूज करते हुए इसको रिकॉग्नाइज कर सकते. लेकिन बेटा आपको जब हाइट मेजर करनी हो, डायमीटर मेजर करना हो, या कोई भी लाइन की
लाइन का डायमीटर मेजर के लाइन बड़ी लॉन्ग है या क्या, तो बेटा उससे क्या होगा कि हमें जो है कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हम अपने सेंसेस के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और बेटा ये याद रखना है हमेशा, जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे, जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ओके, इसका ये मतलब है बेटा, जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं लेंथ, तो हम मेजर कर रहे होते हैं बेसिकली मीटर में, तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू पेज नंबर 39, सॉरी 31। Short distances or lengths are measured in centimeters or millimeters. Very short lengths, for example, the size of bacterium, are measured in micrometers. Long distances are measured in kilometers. Now, beta, when we are talking about length, so I told you that whenever we measure length, we measure them according to their measuring meters. Okay, for example, when I talk to you about the length of anything, so keep this thing in mind that the length SI unit is meter. Okay, the length SI unit is meter. And whenever we are finding the length of any short distance, अगर हम किसी short distance की length measure कर रहे हैं, तो वो हम measure करते हैं बेटा किसमें, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, या मिलीमीटर। सेंटीमीटर जो है थोड़ा बड़ा होता है और मिलीमीटर उससे छोटा होता है। अब बेटा सेंटीमीटर की अगर आप हम बात कर रहे हैं, तो सॉरी, मिलीमीटर उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो बेटा सेंटीमीटर जो है आपके स्केल पे एक साइड पे सेंटीमीटर की शो कर रहे होते हैं और एक साइड पे मिलीमीटर की, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर में करते हैं और या मिलीमीटर में करते हैं। और बेटा अगर उससे भी ज्यादा शॉर्ट लेंथ हो किसी की, जैसे अगर बैक्टीरियम के साइज की बात करें, बैक्टीरियम क्या होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। तो बेटा बैक्टीरियम का अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो मेजर होता है बेटा किससे, माइक्रोमीटर। मतलब उसका जो रीडिंग शो होगी वो किस में होगी बेटा, माइक्रोमीटर। और लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, हम मीटर या किलोमीटर। अब बेटा अगर आप ये देख सकते हैं 2.9 में, लेंस रेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू द एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। अब बेटा इसमें जो है आपको इसमें दिखाया गया है कि लेंथ ऑफ अ वेल, लेंथ ऑफ अ वेल कितना होगा बेटा, 10 मीटर। तो मतलब इतनी बड़ी जो है 10 मीटर जो है वेल होती है। मीटर की बात करिए, डायमीटर ऑफ द अर्थ, बेटा अगर हम डायमीटर, अर्थ के डायमीटर की बात करें, जो पूरे अर्थ का डायमीटर होगा बेटा, तो इसका मतलब ये है 10 को हम पहले अगर 7 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 10 ऐसे करके जो आंसर आएगा 7 टाइम्स करके, उसका जो है बेटा मीटर, मतलब कितने ज्यादा मीटर जो है वो उसका डायमीटर होगा अर्थ का। और डिस्टेंस टू द नियरेस्ट अननोन गैलेक्सी, बेटा अगर अर्थ से जो भी करीब नोन गैलेक्सी है उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मतलब अर्थ के बाद, अर्थ जैसे ही एंड हो रही है जहां उससे स्टार्ट करके जो न्यू गैलेक्सी, मतलब जो भी गैलेक्सी स्टार्ट हो रही है उसके करीब जो है, तो उसका डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो 10 की पावर को जब हम 224 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आएगा उतने मीटर जो है वो लॉन्ग है डिस्टेंस अर्थ से किसी भी नोन गैलेक्सी में। डायमीटर ऑफ अ ब्लड सेल, बेटा सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स तो खुद बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं और जो कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और बेटा जब हम उसके डायमीटर, मतलब एक जैसे सर्कल शेप में होते हैं, तो बेटा सेल्स जब सर्कल शेप में होते हैं तो उसके अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो उसका बेटा कितना होगा, देख सकते हैं आप लोग, 1
माइक्रोमीटर से भी कम, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम, ये देखें। और कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो वो कितना है बेटा, 1 किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, ये देख सकते हैं, 2 3 4 4 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, बेटा अर्थ और सन के बीच में बस कितना फासला है, कितने किलोमीटर का फासला है, आप लोग देख सकते हैं कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, कितना होगा बेटा, 8 किलोमीटर। इसका ये मतलब है बेटा, इसमें जो है आपको एक एग्जाम्पल दिखाई हुई थी कि लेंथ, छोटे से छोटी चीज की, मतलब रेड ब्लड सेल से छोटे से छोटे चीज की, और अगर हम बात करें डिस्टेंस तक की, तो इसका ये मतलब है बेटा वो क्या होगी, आपको इसमें बस एग्जाम्पल के थ्रू दिखाई गई है। आई होप पेज नंबर 31 इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल।